कंप्रीहेंशन पेपर में 5 to 10 मार्क्स का हमेशा आता है, जिसमें बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? पहला, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही कंप्रीहेंशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। दूसरी, इसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आज मैं एक और कंप्रीहेंशन लेके आया हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश अचीवर्स, और आज हम करेंगे कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस। तो जब भी हम किसी कंप्रीहेंशन को पढ़ते हैं उससे पहले हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसके हमेशा से क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे कि व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग रेट ऑफ सोशल मीडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन important way to maintain social relationship for adolescents. Third, what do people generally assume regarding social media? Fourth, which of the following statement can be concluded from the given data? And fifth is, why were the prerequisite colleges student selected for the survey? Sixth is, complete the sentence appropriately. ये एक नया टाइप का इस बार जो क्वेश्चन है वो ऐड हुआ है इस कंप्रीहेंशन के अंदर, तो हम इसको और ध्यान से पढ़ेंगे। जो सेवंथ है, that is what makes social media addiction an important topic of study today. Eighth question is, complete the sentence by selecting the most appropriate option. इसमें हमें 4 ऑप्शन गिवन है, इसके अंदर हमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है। तो ये थे, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को रीड कर लिया। पहली ट्रिक तो हमेशा से यही रही है कि अगर आप पहले क्वेश्चंस को रीड करोगे उससे क्या होगा, आपको जब आप इनको दोबारा इनके आंसर ढूंढने आओगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब क्या करना है, हमें अपने जो हमारे जो कंप्रीहेंशन है हम उसको रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्रीहेंशन। सो हमारा कंप्रीहेंशन अब हम रीड करते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन इज एन इमरजेंसी हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, especially among the young population. Nowadays, irrespective of their social economic background, adolescents have greater exposure to electronic gadgets like smartphones at much younger age. The introduction of internet and the launch of low-cost data packages in 2016-2017 has put India on the global map for large-scale consumption of mobile data, with active social media users going up to 197 million, 14% of the population. For adolescents, phone-based communication is an important way to maintain their social relationship. The use of social media websites is one of the most common activities that has become an integral part of the day-to-day lives, hence making them more prone to social media overuse or addiction, which may have a deleterious effect on the physical and psychological health. Hence, it become important to study the pattern of social media usage and associated physical and mental health issues among pre-university PU college students as they are the vulnerable groups. ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम कर रहे हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ, जो कि है ये वाला। The cross sectional study was conducted in government and private PU colleges situated in urban Bengaluru city, Karnataka, India during July to December 2016. The objectives of the study were to assess and compare the prevalence of social media addiction in different organizations, to assess the health problem related to social media usage, and to assess the various factors associated with social media addiction. एक और टिप है जो आप फॉलो कर सकते हो कि जो जैसे कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी पैसेज के अंदर, आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि जब आप आंसर्स को ढूंढते हो तो काफ़ी हेल्प करते हैं आपके आंसर को अच्छा बनाने में, और जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, अ टोटल ऑफ 1870 स्टडी पार्टिसिपेंट्स वर रिक्रूटेड फॉर द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट PU colleges. Each participant was administered a pretest and semi-structural questionnaire as the study tool. They were asked to answer about the non-academic usage of social media. Scale comprised 10 questions, each given a score ranging from 0 to 4. 0 never, 1 is seldom, 2nd is occasionally, 3rd is often, and 4th is always, with a minimum score of 0 and a maximum score of 40. Participants were classified based on the score as normal, under 12, mild addiction 13 to 20, and moderate addiction 21 to 32, and severe addiction more than 32. Distribution of study less than 33 and equal to 33. Distribution of study subjects according to grading of social media addiction. तो यहाँ पे हमें एक चार्ट गिवन है, तो जिसके बेस पे हमें
जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। कई बार बच्चे चार्ट को देख के एक टाइप से घबरा जाते हैं, इस टाइप का जो हमें ये टेबल गिवन होती है जिससे देख के कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो एक टाइप का ये हमें वो टेबल गिवन होती है कि किस चीज़ में क्या परसेंटेज है, किस चीज़ की है। तो अब हम करते हैं आंसर्स को सोल्व, क्योंकि पहले हमने क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रीड कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग रेट ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। इन्होंने पूछा कि कौन से वो रीज़न है फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। अब आप वो रीजंस बताएं जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया है वो उसका जो रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड द लॉन्च ऑफ लो कॉस्ट डाटा पैकेजेस। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, अगर 3 बार में नहीं आया तो 4 बार पढ़िए, जिससे क्या होगा आपको आंसर ढूंढने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड द लॉन्च ऑफ लो कॉस्ट डाटा पैकेजेस। द सेकेंड इज हमारा, हम यहाँ पे आप अपने जैसे आपको क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो आपको उसके सेंस में देखना है कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम खुद से भी बना सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और नेक्स्ट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड एडोलेसेंट्स हैव ग्रेटर एक्सपोजर टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ड्यू टू विच जो हमारा सोशल मीडिया का एडिक्शन है उसका जो रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट वे टू मेंटेन सोशल रिलेशनशिप्स फॉर एडोलेसेंट्स। ये हमने अभी पढ़ा था, इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन है, फोन बेस्ड कम्युनिकेशन। ये हमारा अभी लाइन हमारी जो हमने पैसेज पढ़ा उसके अंदर ही आई थी। वट डू पीपल जनरली एज्यूम रिगार्डिंग सोशल मीडिया, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये आप इसमें कुछ लाइंस उठा के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आप जो लाइंस गिवन है उनको उसके बेस्ड पे आप आराम से एक आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन डाटा। अब हमें 4 ऑप्शंस गिवन है या कहीं हम 4 इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसके अंदर से हमें एक ऑप्शन को चुनना है। इसके अंदर डी ऑप्शन हमारा एक्यूरेट है, क्योंकि हम इस टेबल के अंदर से देख सकते हैं मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओनली माइल्डली एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। ये हमारा टोटल ऑफ माइल्ड क्या है 72.7, ये हमारा टोटल है। और इन्होंने बोला है कि मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट, हमारा 70 से अबव है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट स्टेटमेंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वर द प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर द सर्वे, बिकॉज दे आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप। नेक्स्ट इज, ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, आप इसमें 1 लाइन का भी आंसर ले सकते हैं, 2 लाइन का भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। एक नया टाइप है जिसमें आपको एक डैश गिवन होता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। द स्कोर फॉर स्टूडेंट हु वर फाउंड टू बी नॉर्मल वॉज बिलो 12। हमने अभी पीछे देखा था, उसका था बिलो 12। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 7th जो है हमारा, व्हाट मेक्स सोशल मीडिया एडिक्शन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टडी टुडे। ये भी एक टाइप का आप इसमें खुद भी लिख सकते हैं और आप इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ी इसके बेस पे भी आप इसमें आंसर बना सकते हो, क्योंकि ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें 4 ऑप्शन गिवन है, इसके अंदर जो उनका अप्रोप्रिएट हमें इसको स्टडी टूल बताना है कि कौन सा स्टडी टूल जो सर्वे के टाइम उन्होंने लिया था, क्या क्या थे। एक तो येस नो क्वेश्चन था, नेक्स्ट वॉज एक येस नो क्वेश्चन हमारा नहीं था, स्केल बेस्ड क्वेश्चनेयर हमारा था, और सम फिजिकल एंड IQ बेस्ड टेस्ट हमारे भी थे जो कि सर्वे में यूज हुए थे। तो हमारे पास डी ऑप्शन में दोनों गिवन है, B एंड C, तो हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनता है D। हमें येस और नो क्वेश्चन भी हमें सही लग सकता है अगर हमने एक बार अच्छे से रीड ना किया हो। अगर आप इसको दोबारा उस पॉइंट पे जाके देखें तो येस और नो क्वेश्चन हमारा नहीं है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर बनता है D, बोथ B एंड C। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैं वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स। थैंक यू वेरी मच।